जी, चलें, ओके। सो आज हमने ज़्यादा स्किल डेमोस की बात करनी है या बीच-बीच में से मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग वन टॉपिक और होल केस हम थोड़ी-थोड़ी बहुत सारी चीज़ों में से चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों की क्वेरीज़ भी साथ ले लेंगे, वो सारा कुछ, ठीक है? हाँ, सो एकदम टू बात बिगिन विद अभी अभी सनिया ने कहा कि चलो जब तक सब जॉइन इन करते हैं, हम जल्दी से मायोमेक्टमी के स्टेप्स कर लें। थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ, फिर अगर किसी ने खुद वॉलंटियर करना है, वो स्टार्ट कर दे। मायोमेक्टमी के जो मैडम मैं स्टेप्स नजर आ रहा रियली है। ना जी, जय हाँ जी, मैडम मैं आगे बता कर मुझे पता नहीं। मैं बता दूं मैम। तो भैया आपको जब मरियम तक ये सख्त नहीं ना होना तो मैं मरियम बता नहीं। और ये जी अंदर जी से वो मैडम। सॉरी लेट मी मैडम मेरी म्यूट ध्यान तरफ देगा। आवाज नहीं है, ये किसी और की आवाज है मैम, मेरी नहीं है। अच्छा, मैडम मैं कर लूं? आप कर यही लो, कह मैं रही पहले सबको ज़रा म्यूट कर देती हूँ ना, हूँ। ठीक है फिर मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है? ज़रूर कर लो। जी, जी सनिया आप अपने आप को अनम्यूट करके आप स्टार्ट कर दो। जी मैम। Ma'am, after evaluating all the causes of male and female infertility and after completing my workup, I will proceed to the myomectomy of my patient for the valid indications. Like if the patient has unexplained infertility with a disordered uterine cavity due to the fibroid with unexplained recurrent pregnancy losses, and if the fibroid is in the lower part of the uterus and it is likely to complicate the delivery, then it will go for myomectomy. I will then do HSG of my patient so as to evaluate the endometrial cavity and fallopian tube, and I will document the discussion about the complexity of the process with my patient, that the surgery has to be planned in the post-menstrual phase, and also the target HB level for there is a extreme blood loss during the myomectomy, so the target HB level for my patient will be, Madam, HB will be 11 gram per DL, and I will ask my patient that you have to stand by the blood. You have to stand by your donors and you have to arrange at least 4 RCC while I'm proceeding to the procedure. Then I will explain the patient. Once I have a counsel about the hemorrhage, I will also counsel my patient about the chances of pregnancy after myomectomy is 40 to 60%, with the likely recurrence about 30 to 50%, with the risk of re-laparotomy about 20 to 25%, with the persistence of these problems about 10 to 15%. Then after confirming the WHO surgical checklist area and after taking the informed consent related to the complication to the surgery, including anesthesia and intra-op and post-op complication, then I will do induction of the patient and I will confirm my findings of my patient abdominally. And then I will, depending upon the location of the fibroid, like for example, if it's cervical fibroid, then I will do examination under anesthesia. Once I confirm my findings and I will proceed it, the abdomen will be entered in the customary manner. The uterine anatomy will be identified, and I will note the position of the round ligament. Also, the head anexa will be noted, and then the longitudinal incision will be given over the most prominent part of the fibroid, and it will be deepened till the plane between the capsule and the fibroid that is reached. These are basically this approach will be for the anterior wall fibroid, where the posterior wall fibroid will be removed to the transcavitatory approach. Then the fibroid will be separated by the from the capsule by the sharp and the blunt dissection with the help of the myoma screw. And the cut suction will be done, and the specimen will be sent for the histopathology. It will be preserved, and if once the endometrial cavity is just reached, then I will take a deep stitches in the interrupted manner in the endometrial cavity, and this dead space will be closed in the form of 8 interrupted suture, and then the serosa will be closed with the Boni method or with the interrupted suture with the Vicryl one, and then the drain will be placed in the pouch of Douglas if indicated, and the abdomen will be closed in the layers. Once the procedure is done, then the specimen will be held to the patient attendance, and I will then follow my patient in the OPD. And once after the 3 months, I will again do her HSG, and I will ask my patient that as much as possible she has to conceive she has to conceive it. If it is not conceived after 3 months, then ovulation induction will be given, but however it will not be delayed as much over. ठीक है। And आपका खैर हो गया, मायोमेक्टमी के स्टेप्स तो हो गए। अच्छा देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर एज़ अ स्टेशन देखा जाए कि सिर्फ स्टेप्स ऑफ मायोमेक्टमी की बात हो रही है, तो फिर शुरू में आपने बहुत सारी इंडिकेशंस बोल दी और फिर या खुद ही से सब फर्टिलिटी का केस इस तरह नहीं करना। बस आप देखो कि व्हाई आर यू डूइंग अ मायोमेक्टमी? फ्रैंकली मायोमेक्टमी में सब फर्टिलिटी से ज़्यादा तो एचएमबी के लिए मायोमेक्टमी होती है ना।
तो अगर केस बनाना ही है तो वो HMB का फिर बना के करो। हाउएवर अगर तो अनएक्सप्लेन तो ना हुई, अगर फाइब्रोइड है तो फिर तो अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी ना रही ना। अनएक्सप्लेन तो तब है जब दोनों मेल और फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हो, तो ये तो इसमें तो फाइब्रोइड आ गया। तो बहरहाल वो जो शुरू में आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, अच्छा उससे उससे भी पहले आपने जब सारी काउंसलिंग की, यू वर राइट, यू यूज्ड इंसिडेंसेस, आपने जिक्र किया बहुत सारे उसके के इतने परसेंट में ये हो जाए, इतने परसेंट में वो हो जाए। फ्रैंकली अच्छा बोला आपने, लेकिन इन सब में से आप पहले सॉर्ट आउट करो कि आपने कौन से इंसिडेंसेस निकाल कर बोलने हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तो वाकई सब फर्टिलिटी का केस है तो चलो फिर ठीक है, आप उसको बोल दो कि उसमें जब हम पेशेंट की काउंसलिंग भी प्री ऑपरेटिवली करते हैं ना, हमेशा पहले पॉजिटिव बातें बहुत ज्यादा बढ़ा के इसलिए बताते हैं कि, और नेगेटिव या रेयर बातें कम या बाद में इसलिए बताते हैं कि ऐसा ना हो कि वो सर्जरी ना कराए। वाई सर्जरी ना कराए? जैसे हम कहते हैं कि सड़क पे निकलना है, हम यही कहते हैं ना कि ठीक रहोगे अपने जो आपका मंजिल है, जहां आपका प्लान है पहुंचने का, वहां पहुंच जाओगे। उसके बाद जिक्र करते हैं कि हाँ 0.1% चांस है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, और खुदा ना खास्ता शायद 0.01% चांस है कि आप फौत ही हो जाए। हम ये नहीं कहना शुरू कर देते कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट पहुंचना है, लेकिन 0.01% चांस है कि आप फौत भी हो सकते हैं, और 0.1% चांस है एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन 99.9% चांस है कि आप पहुंच जाए। हाँ, सो जब भी आपने काउंसलिंग करनी है, जो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा पॉजिटिव बात है, रियली नीड सर्जरी, तो उसकी काउंसलिंग भी करने का एक तरीका है। आपने शुरू में इतनी सारे इंसिडेंसेस बोले और सारे काफी ज्यादा बोले कि शायद 30% रीलिप्रोटमी का चांस है। यू नीड टू रीचेक दिस, आई डोंट बिलीव इट मैम कि 20%। माइमेक्टमी में 30%। देन यू सेड रिकरेंस, रिकरेंस में फिर आप प्रॉपर बोलो ना। रिकरेंस के डिफरेंट मोड्स है। आप अगर लेप्रोस्कोपी कर रहे हो या ओपन सर्जरी कर रहे हो, और देखो रीलिप्रोटमी क्यों होनी है माइमेक्टमी में? कोई ब्लीडर रह जाए या हिमोस्टेसिस, इसका 20% नहीं हो सकता। रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड के लिए रीलिप्रोटमी इज अनदर थिंग, लेकिन रीलिप्रोटमी आफ्टर मेजर सर्जरी लाइक मायोमेक्टमी 20 to 30% इज अ वेरी वेरी हाई इंसिडेंस। ये तो इतना बड़ा इंसिडेंस है, रीलिप्रोटमी तो बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी होती है ना। तो यू नीड टू रीचेक इट, ये इंसिडेंसेस आपके फ्रेंकली ठीक नहीं थे। जो रिकरेंस है, यस, फिर वो आप कहो कि ओपन सर्जरी अगर हो तो उसके बाद रिकरेंस इज इवन लेस देन 10% इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अगर वो लैप्रोस्कोपिकली हुई है तो 26% रिकरेंस है। क्यों? क्योंकि लैप्रोस्कोपिकली हम फील करके नहीं निकालते फाइब्रॉइड, हम जो नजर आ रहा है या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से फील हो रहा है कि फाइब्रॉइड है वो निकालते हैं। इससे बहुत छोटे या सीडलिंग फाइब्रॉइड्स रह जाने का चांस होता है। जो ओपन सर्जरी है उसमें हम फील करके बहुत छोटे जो सब सेंटीमीटर फाइब्रॉइड्स होते हैं वो भी निकाल देते हैं, इसलिए उसके अंदर रिकरेंस बहुत कम है। सो आपने कॉम्प्लिकेशंस जो बोली है ना मायोमेक्टमी से रिलेटेड, वो इतने ज्यादा इंसिडेंसेस थे कि इवन हम में से तो किसी ने भी शुक्र है करानी भी नहीं है, लेकिन सुन के भी जिसने करानी हो वो भी ना कराए कि याला रीलिप्रोटमी 20 to 30%। रीलिप्रोटमी का मतलब हम सबको पता है क्या होता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, एंड वी ऑल नो, शायद हमें से कभी किसी ने मायोमेक्टमी को रीओपन होते नहीं देखा। मे बी एक्रीटा रीओपन हो जाता हो, मे बी कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट रीओपन हो जाता हो, एक सेहतमंद यंग लड़की तो नहीं रीओपन होती मायोमेक्टमी के बाद, राइट? सो ये अपने इंसिडेंसेस, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आगे आपने इतने अच्छे स्टेप्स बताए, वो सारे जो है ना वो सब साइड से करके, बिकॉज अच्छा उसके बाद जब आपने ओपन सर्जरी बता रहे हो, यू वर गुड, वो सारा आपका बहुत अच्छा था। लेकिन देखो जब मायोमेक्टमी की बात हो रही है, सुनने वाला क्या सुनना चाहता है? एज अ सर्जन, वी नीड टू नो, नंबर वन कि ब्लड लॉस कम से कम कैसे होगा, नंबर टू उसका जो है एडिशंस मिनिमाइज कैसे होंगी, ठीक है? अगर उसका तो आप अगर उसका भी जिक्र कर दो कि ब्लड लॉस मिनिमाइज कैसे करोगे और एडिशंस, क्योंकि वी ऑल नो कि मायोमेक्टमी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस के कितने चांसेस होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग सर्जरी हमने क्या मेजर्स लेने हैं कि एडिशंस कम से कम बने, और ड्यूरिंग सर्जरी क्या मेजर्स लेने हैं कि ब्लड लॉस कम से कम हो। अगर ये चीजें भी इसमें ऐड कर दो तो आपकी मायोमेक्टमी का और बेहतर हो जाएगा। द रेस्ट वाज वेल ओके। प्रिसीन। आई डोंट नाउ, एक बात और बोल दें तो मैं आपके पास, आई डोंट जी। नाउ रियली एग्री विद द पॉइंट दैट we 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 remove posterior wall fibroid by going into the cavity, uterine cavity anteriorly, and then opening it, the posterior wall of the uterine cavity, and then remove the fibroid. अब ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है, ये पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट था।
कि आपने पोस्टीरियर वॉल पे इंसिजन नहीं देना और आपने इंटीरियर वॉल से चाहे 2-3 जगहों से कैविटी खुल जाए खोल के जाए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि पोस्टीरियर वॉल से फाइब्रॉइड पोस्टीरियर इंसिजन से निकाल लो, कैविटी इतनी ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये चीजें आप देख लो, और बाकी द रेस्ट वाज ऑल राइट। ठीक है जी, सानिया कुछ कहने का, फिर हम अगला जी जी स्टेशन मैडम, लेते वो हैं। ये था कि जो ब्लड वाली बात आपने मैडम की है ना कि डिक्रीज ये इंसिडेंसेस, मैंने किसी बुक से ही पढ़े थे। वो रेफरेंस भी मैडम मैं शेयर कर दूंगी, बस वो बुक की में बाकी मैडम मेरी लैब के चांसेस आप मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, कितने ज्यादा नहीं होने बुक चाहिए का ना। नहीं, रेफरेंस मैं जो आपको बता रही हूँ, आई थिंक इट वाज फ्रॉम प्रोग्रेस। बट ठीक है आप मैडम। देखो, लेकिन कुछ ये भी चीज होती है कि सुनने वाले को जी यकीन भी तो आ जाए ना, आपके जी अपने भी मैडम। एक्सपीरियंसेस है, वी ऑल नो। हमें पता है कि जो ओपन सर्जरी होती है उसके बाद रिकरेंस वाले कितने पेशेंट्स आपके पास वार्ड में जी आते हैं मैडम। जिसकी रीमायोमेक्टमीज हो रही है। जी मैम। मतलब इतना हाई हम्म। इंसिडेंस नहीं है, स्पेशली ओपन सर्जरी के बाद। हाँ, लेप्रोस्कोपी के बाद इसलिए बिकॉज रह जाने का चांस उसमें होता है कंपैरेटिवली। दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ लेप्रोस्कोपी को के ऊपर आती है ओपन सर्जरी, क्योंकि उसमें रह जाने का है, वरना तो लेप्रोस्कोपी का तो कोई मुकाबला नहीं। हाउएवर मायोमेक्टमी में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में ओपन सर्जरी इसलिए बेहतर हो जाती है बिकॉज लेप्रो में आप छोड़ सकते हो फाइब्रॉइड। नंबर 2 ये कि रीओपन तो सवाल ही पैदा, रीओपन तो में तो बहुत ही बड़ी बात है। सो अच्छा चलो, और अब क्या करें, मैडम किसी ने ये बताना चाह रही थी कि वो जो वेज़ोप्रेसिन इंजेक्शन लगाते हैं एक मिनट, और एक ये बात भी है कि मैडम फंडिस में भी सिंटू लगा देते हैं, टॉनिक ये बांध लेना, वो ब्लड लॉस। मैडम एक तो ये स्टेप्स बता दी ब्लड कि ब्लड लॉस लॉस। मिनिमाइज करने के का तरीका स्टार्ट होता है प्री ऑपरेटिवली, मे बी 3 मंथ्स प्री ऑपरेटिवली। 3 मंथ्स का मतलब ये है कि जीएनआरए चैनल्स, आपसे अगर आप खुद नहीं बताओगे तो आपसे एग्जामिनर खुद सवाल पूछता है कि हाउ विल यू रिड्यूस ब्लड लॉस इन मायोमेक्टमी, देन यू विल से दैट डिक्रीजिंग ब्लड लॉस in myomectomy preparation actually starts preoperatively with the GnRH and agonist injections, which is the Zoladex, which is given once per month preoperatively if we really want to reduce the blood loss intraoperatively. However, there are pros and cons related to the injection. फायदे ये हैं कि ब्लड लॉस कम होगा, नुकसान ये कि इट्स एक्सपेंसिव विद साइड इफेक्ट्स। नंबर 3 ये कि प्लेन ऑफ सर्जरी को खत्म कर देते हैं। नंबर 4 ये कि फाइब्रॉइड की लुक फाइब्रॉइड वाली नहीं रह जाती, उसकी सार्कोमेटस टाइप लुक आती है। हाउएवर चेंज नहीं करता सार्कोमा में, इट्स जस्ट द लुक जो जीएनआरएच की वजह से उसकी बदल जाती है। सो जिसकी वजह से आपको प्लेन्स में भी मुश्किल होती है। सो उसके अलावा ब्लड लॉस इंट्रा ऑपरेटिवली वेजोप्रेसिन का इंजेक्शन जो इंट्रामायोमेट्रियल दिया जाता है, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ तो कोई तकरीबन 20 to 25 मिनट्स होती है। एंड देन द टोनिके, ठीक है, अब तो वेजोप्रेसिन भी अवेलेबल है, वो भी लग जाता होता है, 2-3 फॉर्म्स में हर जगह मिलता है। मैंने आपको मैडम उनके ये लिए जो मैंने हम्म। एचएसजी की बात की वो तो ठीक है ना मैडम, कुछ एग्जामिनर्स ये पसंद नहीं करते कि आप प्रीवियसली भी एचएसजी करें, वो कहते हैं आप पोस्ट प्रोसीजर करें। तो मैडम ये एचएसजी मैंने वाली बात ये नहीं है कि एग्जामिनर क्या पसंद करते हैं और एग्जामिनर क्या नहीं पसंद करते, आपकी लॉजिक होनी चाहिए बात की। जी मैम। हमेशा याद रखो आपके एग्जाम में इट्स नेवर दैट व्हाट एग्जामिनर वांट्स, इट्स द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। अगर आपने कहा एचएसजी कराएंगे, उसकी भी अच्छा, आपने प्री ऑपरेटिवली भी एचएसजी कराया, अगर मायोमेक्टमी होनी है तो आप ड्यूरिंग मायोमेक्टमी ही सारा कुछ असेस कर सकते हो, इवन उसकी कैविटी को देख सकते हो, स्टोस्कोपिकली उसकी लैप्रो करके ट्यूब चेक कर सकते हो प्री ऑपरेटिवली। चलो इफ यू डोंट हैव द फैसिलिटी और आप करना चाह रहे हो तो वो गलत नहीं था, वो भी जस्टिफाइबल है कि आपने एक दफा सारा देख लिया कि उसे मायोमेक्टमी की जरूरत है भी कि नहीं। दूसरी चीज ये कि आपने इंट्रा ऑपरेटिवली बिफोर स्टार्टिंग मायोमेक्टमी डाई टेस्ट करना है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं करना है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना। लॉजिक देने वाली बात है, दोनों चीजें लॉजिकल है। जो कहते हैं करना है उससे फायदा ये है कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी, बिफोर सर्जरी, आपको पेशेंट का टेबल स्टेटस पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कहते हैं कि नहीं करना, हाँ, एक तो टेबल स्टेटस पता चलता है करने से, दूसरा ये कि इफ ड्यूरिंग मायोमेक्टमी यू एंड अप इन ओपनिंग द कैविटी तो आपको ब्लू डाई से पता चल जाता है कि कैविटी खुली है। हाउएवर अगर ब्लू डाई ना भी हो तो आपको एंडोमेट्रियम के कलर से ही पता चल जाता है कि कैविटी खुली है। जो लोग कहते हैं कि नहीं करना, वो उनका ये लॉजिक होता है, वो भी लॉजिकल बात है, जस्टिफाई करने वाली बात है एग्जाम में। जो कहते हैं नहीं करना, वो उनका मकसद ये होता है कि मायोमेक्टमी तो होनी है और डाई इज एक्चुअली एन अनस्टरलाइज्ड थिंग। तो जब मायोमेक्टमी होनी है और उसके बाद मैंने 3 महीने बाद इसका ट्यूबल पेटेंसी चेक करना ही है बिफोर गोइंग अहेड विद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो फिर मैं अभी क्यों ये एक्स्ट्रा इंटरवेंशन और एक्स्ट्रा उसको डाई डाल के तो अनस्टरलाइज्ड चीज में से गुजारूं।
So both things are logical. आप जिस तरह करते हो कर लो. Personally, what I do during my surgery, मैं myomectomy में before starting with the myomectomy, I do the dye test ताकि मुझे उस वक्त tubal status at the time of surgery पता हो before myomectomy. Secondly, yes, it makes the cavity even more clearer during surgery if you end up opening the cavity. तो इट्स हेल्पफुल. आप डाई डाल के उसके बाद कैविटी को सेलाइन से वॉश भी कर देते हो नीचे से, उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करते हो. सो दैट्स ऑल राइट. So both things are logical. However, according to books, after 3 months of myomectomy, if you have not opened the cavity after 3 months of the procedure, आप उसकी tubal patency test करते हो before going ahead with the fertility treatment. Cavity खोलिए तो 6 months के बाद कर लो. ठीक है. So this दोनों चीजें logical है actually. जी. मैम प्लीज रिपीट कर देंगी स्टेप्स? किस चीज के? मैम मायोमेक्टमी myomectomy के. मायोमेक्टमी के बहुत अच्छे सनिया ने स्टेप्स बोले. क्विकली मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ. प्री ऑपरेटिव में अच्छी बात है, उसने जोर लगाया, सिनेरियो दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली जोर लगाना. इफ इट इज अ केस ऑफ सबफर्टिलिटी, अकॉर्डिंगली बोल देना कि मैंने सारी ऑब्वियसली बिकॉज सबफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों की मैंने पहले इन्वेस्टिगेशंस कर ली एंड प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड ऑल दैट. उसके बाद पेशेंट इज शिफ्टेड टू द ऑपरेशन थिएटर. ऑब्वियसली सारे के अंदर उसका ब्लड अरेंजमेंट, उसकी कंसेंट, उसके LMP, उसकी एनेस्थीसिया असेसमेंट, ये सब आप कर चुके हो. पेन ड्रेप के बाद what I do before myomectomy of subfertility patient is आप भी मेंशन कर सकते हो. You do hysteroscopy and you do laparoscopy. You do the dye test and then because she has got multiple fibroids, आप उसको ओपन सर्जरी से स्टार्ट करोगे. ओपन सर्जरी में अगर बताना है तो रिकरेंस बता दो कि इट्स लेस देन 10% विद ओपन सर्जरी. और उसका प्रोग्नोसिस और जिस सानिया ने बताया कि मोर देन 40 to 50% चांस दैट शी विल कंसीव आफ्टर मायोमेक्टमी आल्सो. तो उसके बाद आप उसको then you give the incision as I have done the laparoscopy. आपका size of fibroid at times defines incision, but if it is mobile and you have good skills, even larger fibroids can be removed with a lower transverse incision. You will give that, open up the cavity. After opening up the cavity, you will have view inside and will note the intraoperative findings or will reconfirm the intraoperative findings of the laparoscopy. And you'll proceed with the myomectomy. You will notice the location and size of the fibroids, keeping the tube safe and giving minimum number of incisions on the uterine wall. You'll start off with the surgery. Our anterior fibroids are removed, preferably with the transverse incision on the anterior wall of the uterus, and posterior fibroids are removed with the vertical incision on the posterior wall of the uterus. And during the procedure, you will take care of two things. One is to minimize the blood loss. Number two is to minimize the post-operative adhesions. For the minimum blood loss, you can discuss with the patient the pre-operative GnRH analogs. But however, intraoperatively, you can apply the tourniquet to obstruct the uterine vessels or the blood supply. And number three is the vasopressin injection, which is a vasoconstrictor applied intramyometrial during the surgery. And then to reduce the adhesions, post-operative adhesions, you have to be very meticulous. You should handle the tissues very carefully and in a sophisticated way. You have to take care of the sterilization specifically, and then you have this hyaluronic acid with the name of Vitamix gel, which is then spilled inside the pelvic, inside anterior and posterior wall of the uterus and the whole pelvis at the end of the procedure after you are done with the myomectomy. So after this, and then you'll then close the abdominal wall in the first order or post-op care and all. ठीक है? सनिया ने क्यों हाथ खड़ा किया? जी जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैडम ये पोस्टीरियर वार के लिए आपने कहा वर्टिकल इंसिजन मैम. हाँ, पोस्टीरियर के ऊपर वर्टिकल और एंटीरियर के ऊपर ट्रांसवर्स. इसकी लॉजिक ये है कि एंटीरियरली तो चलो ट्रांसवर्स इंसिजन की आपकी स्टिचिंग आसान हो जाती है. पोस्टीरियर में अगर आप ट्रांसवर्स लोगे ना, फॉर एग्जांपल वो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्राइन बॉडी पे फाइब्रॉइड और आपने वहां इंसिजन दिया, ट्रांसवर्स को स्टिच करना बहुत मुश्किल होता है. एंड देन यू डोंट नो कि वो ट्रांसवर्स में जाते जाते कहाँ तक चला जाए. जब आप वर्टिकल देते हो ना, वर्टिकल को पकड़ के स्टिच करना हमेशा आसान होता है और बेटर स्टिचिंग होती है. और बेटर स्टिचिंग लीड्स टू लेस एडिशंस पोस्ट ऑपरेटिव. ठीक है मैडम. मैडम पोस्ट आपने कहा कि 3 मंथ्स के बाद मैडम फिर HSD का कोई कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने के बाद अगर पेशेंट 3 months बाद, yes, I will say है किताबों में भी कि even if the tubes were patent intraoperatively, post myomectomy, it's better to recheck the tubes before taking patient ahead with the fertility treatment further.
और मैडम और ये जो फॉलो अप उसकी डिलीवरीज होंगी अगर पेशेंट कंसीव करती है तो वो फिर नॉर्मल एसपीडी Good होगी या question. कैविटी होगी तो If you had opened the cavity during myomectomy, then definitely she cannot deliver normally. Would definitely cesarean section होगा planned. अगर cavity open नहीं हुई तो फिर आप उसकी वो कर लो, ओके मैम थैंक यू। फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर कैविटी नहीं ओपन है। कैविटी ओपन नहीं हुई तो 3 मंथ्स के बाद शी कैन स्टार्ट विद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड शी कैन कंसीव। अगर कैविटी ओपन हुई है तो वी गिव हर 6 मंथ्स टाइम फॉर रिकवरी एंड देन वी टेक हर फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। मैडम जब हम पोस्टीरियर वॉल को वर्टिकल इंसिजन दे के हम उसको निकालते हैं फाइब्रॉइड को, तो फिर वो जिस तरह से हम वैसे वर्टिकल इंसिजन देते हैं तो उसके बाद हम प्लान लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तो क्या हम पोस्टीरियर वॉल पे जब दिया है तो हम उसको प्लान सिजेरियन के लिए नहीं आफ्टरवर्ड काउंसिल करेंगे? अगर कैविटी ओपन नहीं हुई ना और आपने अच्छी स्टिचिंग उसकी की है उसकी डेड स्पेस को बंद करके, जो कि वी डू दैट, वी हैव टू क्लोज द डेड स्पेस, हम डेड स्पेस छोड़ नहीं सकते मायोमेक्टमी में, और कैविटी ओपन नहीं हुई तो फिर पेशेंट कैन डिलीवर नॉर्मली। दैट्स व्हाट बुक्स से। एंड आल्सो वी आल्सो सी कि अगर कैविटी ओपन नहीं हुई होती तो रप्चर नहीं होती यूट्रस। अगर कैविटी ओपन हुई है तो फिर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। वर्टिकल इंसिजन हमने दिया फाइब्रॉइड निकालने के लिए, कैविटी तो ओपन ही की। जी मैडम ठीक है, मतलब यही रूल है कि कैविटी जब तक आपने ओपन ये नहीं याद होती रखना हमें उसको है कि अगर कैविटी नहीं ओपन, करना। इसलिए तो जब हम मायोमेक्टमी के नोट्स लिखते हैं, ऑपरेशन नोट्स लिखते हैं, उसमें हमने जरूर मेंशन करना होता है कि कैविटी ओपनड और नॉट ओपनड। मैडम ये थोड़ा बोनीज हुड का बता दें। थैंक यार ये बोनीज हुड का अब आप खुद ही कोई और बता दे, अब तो ये कॉन्सेप्ट ही पुराना हो चुका है। बोनीज हुड आप देख लेना वो दूसरी वाली किताब से, ठीक है। आई डोंट रियली, मेरे यहाँ तो ख्याल से कि मायोमेक्टमी का These are the important points that you need to remember. बोनीज हुड के अंदर मेरा ख्याल है वही है कि जो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड को वो इंटीरियर से जाके निकालते हैं, which I don't really agree. जी सनिया। मैडम ये मायोमेक्टमी के अगर कोई प्रोसीजर आता है ना, जैसे आपने कहा कि एचएमबी इज द मेन इंडिकेशन ज्यादा इसके लिए होती है ना, तो मैम ये स्टार्ट की जरा टिपिकल लाइंस मैडम प्लीज आप बता दें। लिखा होगा ना, वो जी सिनेरियो लिखा होगा कि she is 32 years of age, she has come with the multiple fibroids and she wants to get the myomectomy done because of the heavy menstrual bleeding. Elaborate the steps of myomectomy. जी मैडम, तो स्टार्ट की जरा मैडम कोई जरा ऐसी टिपिकल लाइंस अपने बता दें ताकि मैं नोट कर लूं अपनी। I will counsel my patient that her HMB is probably because of the fibroids and we are planning her surgery. Considering the surgery, I will do the pre-operative preparation of the patient, which includes the consent of the patient. For in the consent, the special points will be the consent regarding the open surgery because she has got multiple fibroids. वो सारा कुछ आपके सिनेरियो पे लिखा होगा कि open surgery planned है, आपने अब उस सिनेरियो से आगे की बात करनी है। So the consent will include consent regarding the open surgery, her incision, number 2, blood transfusion and the need of blood transfusion if needed, and the amount of blood may be lost during the procedure. Also very, very rare chance, less than 0.1% chance that she may even need hysterectomy at the time of surgery because uterus is going to be handled. Also, then consent will also will also include the anesthesia complications that may happen. After consent, I'll do इतना blood arrangement वो उसकी HB पे depend करता है, maybe 2 blood cross match should be available, and then the anesthesia pre-operative assessment is done on the day of surgery. After NPO, patient is shifted to the operating table of वो सारा कुछ, ठीक है। अच्छा मैडम, और एक आपने कहा कि बहुत अगर ज्यादा, सॉरी एक बात बता रही हूँ, ज्यादा मैडम। आपका एम्फसाइज अब किस चीज पे है? आपका एम्फसाइज इस चीज पे नहीं है कि उसकी HMB का क्या है, आपका सिनेरियो है elaborate the steps of myomectomy. आपका ये नहीं है कि आपने HMB को मैनेज करना है। सो डोंट अपनी बात में डोंट एम्फसाइज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ HMB। हाँ, ये बात अगर आप प्री ऑपरेटिवली कहते हो कि मायोमेक्टमी के बाद HMB कितने % ठीक हो जाएगा, वो बहुत ठीक बात है, लेकिन आपने बात स्टार्ट करनी है मायोमेक्टमी से कि डिसाइड हो चुका है मायोमेक्टमी और ओपन मायोमेक्टमी बिकॉज मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। हाउएवर देयर इज अ चांस ऑफ क्या अगर वो लैप्रोस्कोपिकली थी, लेकिन वो आपके सिनेरियो पे लिखा होगा,
तो आपने बात स्टार्ट, आपका सारा जो फोकस है ना मायोमेक्टमी ही होना चाहिए, HMB नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए आपने बहुत प्री ऑपरे में बहुत लंबी-लंबी बातें भी नहीं करनी। आपने मायोमेक्टमी की तैयारी करके जाना है और HMB की इंडिकेशन लेके जाना है। जी सनिया। और मैडम ये बता दें कि जैसे मैडम आप कह रही है ना कि हम जो है ना ओपन अप्रोच करते हैं मल्टीपल फाइब्रॉइड, तो ये मल्टीपल फाइब्रॉइड तो मैडम लैप्रोस्कोपिकली नहीं निकल सकते, या मैडम हमने बिल्कुल जाना निकल ही सकते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने जी ये कहा है कि अगर आपके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, लैप्रोस्कोपिकली बिल्कुल होते हैं और बहुत आसानी से होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें ब्लड लॉस कम होता है, उसके अंदर एडिशंस कम बनती है। लेकिन recurrence of fibroid is more after laparoscopic myomectomy, which is more than 25 to 30%, nearly 26% है जो लिखा हुआ है। ठीक ओपन है। सर्जरी के अंदर एडिशंस बनने का चांस ज्यादा हो सकता है, उसके अंदर ब्लड लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है, रिकवरी देर से हो सकती है, पेट पे बड़ा सा निशान आ सकता है। हाउएवर रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड इज लेस इन ओपन सर्जरी। ठीक है मैडम। और और मैडम रिकरेंस एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एक पेशेंट शी इज यंग इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कितने ऑपरेशन कराएगी वो? जी मैम, ठीक है मैडम। और मैम ये इंट्रामाइमेट्रियम आपने वेसोप्रेसिन का बताया ना मैडम, मैंने एक दफा माइमेक्टमी देखी थी, ये खैर होती तो बहुत ज्यादा थी, जिसमें मैं वॉश हुई थी ना, वो जरा बहुत ही बुरी थी। तो उसमें मैडम ने ना सिंटो लगाई थी फंडस में, तो अभी नो ये वेसो पॉइंट। नो पॉइंट, अच्छा ठीक है। वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन, वेसोकंस्ट्रिक्टर है ना, इस वजह से। ठीक है मैम, ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलो तो चलो अच्छा, हमने माइमेक्टमी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब किसी ने मुझे कहा था ये जिडेल का बता दें, दैट आई कैन डू विद यू। मैंने एक जिडेल भी अरेंज कर लिया था आप लोगों के साथ करने के लिए। वी ऑल नो इट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, और इसके इट्स इसकी जो वैलिडिटी या इसका जो जो इफेक्ट रहता है, इट इज फॉर 5 years, राइट। और इसके अंदर क्या है, वी ऑल नो इटोनोजेस्ट्रल है, और इसके साथ एक इम्प्लानॉन भी होता है। इम्प्लानॉन में सॉरी इटोनोजेस्ट्रल है। जिटेल के अंदर लीवोनोजेस्ट्रल है, सॉरी इसमें लीवोनोजेस्ट्रल है, इम्प्लानॉन में इटोनोजेस्ट्रल है। ठीक है, मैंने एक इम्प्लानॉन भी अरेंज कर लिया था और एक जिडेल भी अरेंज कर दिया था। इम्प्लानॉन इज फॉर 3 years, जिडेल इज फॉर 5 years। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स हैं। अगर किसी ने खुद वॉलंटियर करके पहले जिडेल करना है, आप बता दो, वरना मैं पहले बता देती हूँ, बता दो जैसे करना है। मैडम मैम आप आप बता बता दें, दें, आप मैडम बता आप दें बता मैम। दें। पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ 2-3 मिनट में, फिर आप लोग कर लेना, ठीक है, बारी बारी। सो द थिंग इज के अगर आपका जिडेल का स्टेशन आता है, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का या किसी भी डिवाइस को रखने का स्टेशन आता है, उस सब चीजों में कोई निमोनिक बना लो, कुछ कर लो, यू हैव टू डू सम प्री प्रोसीजर प्रेपरेशन। ऑब्वियसली कंसेंट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी या उसका LMP पूछ लो। उसके अलावा आपने उसका एनाल्जेसिया का अरेंजमेंट करना है। देन आपने उसका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, उसका पोजीशन और एक्सपोजर ठीक होना चाहिए, और लाइट प्रिपरेशन। इसका यू कैन मेक अ निमोनिक और व्हाटएवर, ताकि इसमें से कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, सो यस फॉर जिडेल आल्सो आपने ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपने व्हेन द पेशेंट इज लाइंग डाउन इन अ नॉर्मल सुपाइन पोजीशन, इसको तो हमने बाजू में रखना है। यू नीड टू नो एग्जैक्टली द साइट जिस पे रखना है। मीडियल एपिकोंडाइल होता है, ये हमारी जो कोनी होती है ना, ये वाली, इसका यहाँ पर ये एक मीडियल, ये वाला मीडियल एपिकोंडाइल होता है। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल से तकरीबन 8 to 10 सेंटीमीटर्स, इसको ठहरो मैं ऐसे करके बताती हूँ। मीडियल एपिकोंडाइल है ना, इससे तकरीबन 8 to 10 सेंटीमीटर्स अबव गोइंग टुवर्ड्स एक्सिला। पोजीशन क्या होती है पेशेंट की, ये भी मैं आपको बता दूं। पेशेंट इज लाइंग डाउन एंड हर आर्म इज रेस्टेड इन अ पोजीशन सो दैट द हैंड कम्स टू लाई नियर ईयर। जब वो लेटी हुई है तो उसका बाजू इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उसका हाथ कान के पीछे आके लैंड कर रहा है। उससे क्या होता है कि ये वाला एरिया एक्सपोज हो जाता है। सो फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल इट्स नियरली 8 to 10 सेंटीमीटर्स अबव द मीडियल एपिकोंडाइल। यहाँ पर एक सल्कस होता है बाइसेप ट्राइसेप के बीच में, उससे कुछ 3 सेंटीमीटर्स बिलो होता है। ठीक है, यहाँ पे सो आफ्टर एक्सपोजर आपने पेंट किया एंड नाउ यू हैव गॉट दिस जिडेल। जिडेल जो है, इसके अंदर एक ये हमारे पास ट्रुकार सा होता है, जिसका ये शीट होती है। शीट तो उतार ली, आई होप यू ऑल कैन सी इन द स्क्रीन। ठीक है,
ये इसका पॉइंटेड सा ट्रोकार है और ये इसका प्लंजर है, ठीक है। दिस इज द आउटर शीथ एंड दिस इज द प्लंजर। ये अच्छा, अब करना क्या होता है कि पेशेंट होता है उसका फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस, ये अगर पेशेंट का बाजू है, ठीक है, तो हमने पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे हमने ये जेडेल रखना है, ठीक है। उसके बाद आई विल obviously give her local injection। आपने 10 cc का 50% लिग्नोकेन इंजेक्शन भर के सबकुटेनियस उसको इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब आपने ये पकड़ा, इसके अंदर यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे दो मार्क्स हैं, एक ये ब्लैक कलर का, एक इधर मार्क है और इधर है, ठीक है। जो फर्स्ट मार्क है, पहले इनिशियली यू विल पुट इट ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट 45 degrees टू द स्किन, फिर आप उसको अंदर लेके जाओगे। या इट्स डिफिकल्ट टू टेल इट इन अ वीडियो क्लास में तो बड़ा मुश्किल है ये बताना। पहले 45 डिग्रीज पे रख के आप उसको अंदर करोगे, ठीक है। वंस इट इज इनसाइड द स्किन, यूं, ठीक है, यहाँ 45 डिग्रीज तक करके फिर उसके बाद वंस यू हैव रीच्ड द फर्स्ट मार्क, फर्स्ट ब्लैक मार्क, तो आपने 0 डिग्रीज पे एंगल बना लेना है इसकी शीथ का और स्किन का, ठीक है। 0 डिग्रीज पे करके थोड़ी सी स्किन को उठाना है, वो हल्की सी टेंटिंग उसको कहते हैं, जैसे कपड़े के नीचे से सुई यूं करके गुजारो तो कपड़ा ऊपर को उठ जाता है। उससे ये होता है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इट रिमेन्स इमीडिएटली बिलो द स्किन बिकॉज इट हैज टू बी सबकुटेनियस, ठीक है। तो अब हमने अलोंग द स्किन यानी 0 डिग्रीज विद द स्किन रख के इसको सेकंड मार्क तक लेके जाना है। जब ये सेकंड मार्क तक आ जाएगा तो मैंने प्लंजर निकाल लिया। प्लंजर निकाला तो हमारे पास ये दो एम्प्यूल्स हैं इसके, ये इस तरह का इसका एक एम्प्यूल होता है, ठीक है। जब ये सेकंड मार्क तक आया तो मैंने प्लंजर निकाल के इसकी जो आउटर शीथ है उसको लोड कर लिया। जब इसको लोड किया तो मैंने प्लंजर अंदर डाला। एट द मोमेंट आई एम पुशिंग इट, एक पॉइंट पे आके मुझे रेजिस्टेंस फील हुई। अब ये अंदर खुद से नहीं जाएगा, इसको अंदर ले जाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करनी है। जिस मोमेंट पे मुझे रेजिस्टेंस फील हुएगी वहां पे मैंने इसको फिक्स कर लिया और इसको फिक्स करके इसको पुल बैक करना है। जब मैं इसको पुल बैक करूंगी तो ये खुद ब खुद, दिस थिंग इज फिक्स्ड एंड दिस शीट इज बीइंग पुल्ड आउट। जब ये पुल आउट होगा तो मेरा ये जो इसके अंदर का एम्प्यूल है ये खुद ब खुद ही स्किन ऑफ द पेशेंट के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब ये एक दफा एक रॉड अंदर जाके सेटल डाउन हो गया तो दूसरा रॉड 45 डिग्रीज फ्रॉम द फर्स्ट रॉड, सिमिलरली इसको मैंने 45 डिग्री, इसको दोबारा मैंने वापस खींचा फर्स्ट मार्क तक। जब ये आ गया तो फिर मैंने अपने प्लंजर को निकाला, दूसरा जो मेरे, बिकॉज ये दो रॉड्स होती हैं इसके अंदर लीवोनोजेस्ट्रम की, इसको डाला। तो फिर मैंने इसको जब फिक्स किया यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फील हुई, इसको मैंने यहीं फिक्स कर दिया। ये मेरा फिक्स्ड है और ये मेरा पुल बैक हो रहा है। जब ये पुल बैक हुआ तो ये खुद ब खुद ही अंदर जाके सेटल डाउन हो गया और इस तरीके से मेरे जो दोनों रॉड्स हैं वो पेशेंट की स्किन में यूं करके 45 डिग्रीज फ्रॉम ईच अदर सेटल डाउन हो जाते हैं। आई विल रिमूव दिस इंसर्टर और दिस ट्रोकार and will apply band-aid or will apply the pressure dressing at the site of insertion of the jadal, or will tell the patient not to use that arm for another 24 hours. कोई heavy चीज ना उठाए, use तो वो कर ले। और especially jadal is inserted in the non-dominant arm of the patient। अगर कोई right handed है तो left side पे रखोगे, left handed है तो उसे right side पे रखोगे, simple। और इसी तरह ये इम्प्लानॉन वैसे खत्म ही हो गया, तकरीबन आ नहीं रहा, वरना ये बहुत आसान और प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज वैलिड फॉर 3 years। Similarly, non-dominant arm of the patient में same point which is 8 to 10 centimeters above the medial epicondyle in the non-dominant arm of the patient, same position patient की उसी तरह कंसेंट, LMT सब इसमें, खैर ब्लैडर में भी MT हो ऑब्वियसली क्योंकि हमने तो बाजू में रखना है। सो वही सारा कुछ करके लाइट एक्सपोजर, पोजीशन, लोकल का इंजेक्शन लगा के, पेंट और लोकल का इंजेक्शन के बाद देन ये जो इम्प्लानॉन होता है ना इसके अंदर ईटोनोजेस्ट्रल होता है और दिस इज ऑलरेडी प्री लोडेड इंस्ट्रूमेंट। इसको उसी तरह पेशेंट की हमने स्किन के अंदर पहले थोड़ा सा 45 डिग्रीज पे जब एक दफा अंदर चला जाता है तो उसके बाद इसको हम अलोंग द स्किन 0 डिग्रीज पे ले जाते हैं, यूं करके ऐसे करके फुल लेंथ अंदर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी ये सील को प्रेस करेंगे, टिक करके आवाज आएगी जब, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हम
180 डिग्रीज, ऐसे बल्कि 90 डिग्रीज हुआ, ये टिक करके यहाँ तक रोटेट करेंगे। अब इसको मैंने फिक्स कर लेना है और इसको पुल आउट करना है। ये चीज दोनों में इंपॉर्टेंट है कि प्लंजर पुश नहीं करना, शीट को पुल करना है। तो इसके अंदर जो प्री लोडेड एम्प्यूल होता है वो उसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी। इट्स डिफिकल्ट टू टेल इन अ वीडियो, लाइव बताना इट्स ऑलवेज इजियर। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। मैम ये लास्ट स्टेप जरा दोबारा बता दें। किसका? लास्ट स्टेप ही तो सबसे इम्पोर्टेंट था। लास्ट स्टेप ये है कि आपने ये जो शीट है ना, ये जो है, इसको आपने पुल बैक करना होता है, प्लंजर को पुश नहीं करना। नॉर्मली जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम प्लंजर को पुश करते हैं तो इंजेक्शन लगता है पेशेंट को, इंट्रामस्कुलर हो, आईवी हो या सबक्यूटेनियस। ये वो इंजेक्शन नहीं है। इसके अंदर आपने कभी भी इस वाले प्लंजर को नहीं पुश करना कि वो चीज अंदर चली जाए। आपने शीट को पुल आउट करना है। मैम ठीक है जी। मैम इसको मार्क करना लाजमी होता है मार्कर से, या हम लोग नहीं मतलब असेस कर लें कि जनाब ये 8 to 10 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकंडाइल यू है? डोंट नीड टू मार्क इट, आपको मार्क करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है, वेलकम। सो इस तरीके से, और किसी ने कुछ रिवाइज करना है या कोई और बोलते हैं, इसी की रिवीजन हो जाएगी मैम कॉपर टी पीरियड, का। अच्छा कॉपर, ये अब आप लोगों ने परफॉर्म करना है। कॉपर टी बताओ, फिर आप बाकी चीजें बताना। कॉपर टी या माइरीना कोई और वॉलंटियर कर ले जल्दी से। हाँ रीना जी। डॉक्टर जी रीना कॉपर टी में बता दूं? जी, आप बताएं। First of all, I will introduce myself, then I will take introduction from the couple, and I will tell about the pros and cons of this procedure, which I am going to do in the patient. And I will confirm her LMP and take the written or verbal consent from the patient. I will ask my patient to empty her bladder and lie down on the lithotomy position. And I will do after gowning and gloving, and I will do by manual examination to see the size and position of the uterus. And then I will insert the Cusco's speculum after lubrication. Then I will hold the anterior lip of the cervix with tenaliculum or sponge holder to straighten the like uterus, cervix and uterus के बीच में जो एंगल बनता है उसको मुझे स्ट्रेट करना होता है कि इजीली पास हो जाए। Then आप I will ऐसे बताओ जैसे एग्जाम में बताओगे। आप बताओ और बाकी लोग आपको भी मार्क्स भी देंगे। ठीक है, कॉपर टी तो इतना जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है। Then I will pass the sound into the uterus to see the assess the size. Then I will open the packet. I will ask my assistant to open it because I am already gowned and gloved. So I will ask my assistant to open it, and I will yes. फिर मैं उसको मैन्युअली डॉक्टर आई विल मैन्युअली लोड द कॉपर टी into the sheet, जो उसके अंदर शीट है उसको मुझे लोड करना है. Then I'll insert into the uterus. I will fix it with the flange. जो डॉक्टर फ्लैंज होता है उसके साथ हमें फिक्स करना होता है, साइज उसके उस हिसाब से लेनी होती है. Like 7 centimeter, I will insert it till 6 centimeter, not till the fundus. I will unload the copper tea over there, and then I will carry it till the fundus or the resistance is felt. Then I will fix the sheet and I will pull. Like इसमें भी हमें जो है ना प्लंजर को पुश नहीं करना होता है, दोनों को साथ में ही निकालना होता है. Like plunger and sheet दोनों को हमें साथ में निकालना होता है. Then I'll cut the thread. After this, I will reposition my patient. I will say thank you. I will do documentation, and I will also counsel the patient about the like heavy bleeding. क्या क्या उसको symptoms उसके साथ हो सकते हैं. Heavy bleeding, heavy menorrhagia for 6 months, and I'll ask my patient to check her thread by herself in every periods. बस. ठीक है, no, she doesn't need to check the thread every time. बाकी तो सब ठीक है. किसी और ने कुछ करेक्शन करनी है तो बता दें.
थ्रेड हर दफा उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। द रेस्ट वॉज ऑल राइट। इसके अंदर भी अगेन प्रॉपर्टी में भी देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो फ्रैंकली ये जो स्किल डेमोज है ना, उसमें मेरी बात याद रखना, वो फुल मार्क्स वाले हैं। हर बंदा वो परफेक्ट करेगा। एवरीवन, आप लोगों में से हर कोई जो है उसको ये तैयारी करके जाननी है कि प्री ऑपरेटिवली प्री प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं, पोस्ट प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं, स्टेप्स टाइम रख के, क्योंकि उसमें तो हर एक ने फुल लेना है। जल्दी जल्दी बता दो जी, एक एक क्वेश्चन। समरीन ने क्या क्वेश्चन, फातिमा का हैंड रेज है जी। जी मैम, इसमें यह है कि हमने कॉपर जो है इसको हमने पहले लोड करके रखना है। लाइक जब हम ग्लाउनिंग ग्लविंग होगी है, स्पेकुलम डाल दी, उस वक्त तो हम उसको लोड नहीं करेंगे ना मैम, वो तो हमने बिफोर पेशेंट को लेटाने से पहले और तब हम उसको लोड करेंगे, जो इंटरवल डालते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें ना, ट्रॉलीज पहले से क्या, ये इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो तो हर कोई ठीक करके देगा। उस वक्त अगर आप करने बैठ जाओगे तो वो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और समरीन? मैम मैं कुछ स्टेप्स बताना चाह रही थी कि एक ये कि आप इस तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस एंड रूल आउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी और LMP वगैरह वो रूल आउट हो जाएगी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। आई वांट टू रूल आउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, देन आई विल काउंसिल माय पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। मीनवाइल आई विल prepare the trolley in which I will load the copper IUCD, क्योंकि आपने उसको पैकेट के अंदर करना होता है। अभी आप गाउन ग्लव उसको आपने पहले ही लोड कर लेना उसके अंदर ही, अभी आपने पैकेट ओपन नहीं करना। एंड आई विल सेट और प्रिपेयर माय ट्रॉली बिफोर दैट, जो आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। देन पेशेंट विल केम बैक, आई पुट द पेशेंट इन lithotomy position and do the bimanual examination to assess the size of uterus. After that I will go for then gowning and gloving, and I will do the bimanual examination and insert the lubricated cusco speculum. Once I introduce the cusco speculum, I will hold the anterior lip of cervix with the sponge holder and straighten the angle between the uterus and the cervix. After that, I will do the uterine size assessment with the sound, and then adjust the flange according to I will adjust the flange on that copper T. Or then I will introduce the copper T that is already opened by my assistant. So I will introduce into the uterus about 1 centimeter short of cervix, and then I will pull the plunger in, but do not move close to the fundus. Then once the wings of the copper T that are open inside, then I will move the flange up till the mark. जो 6 सेंटीमीटर अगर साइज है तो 5 पे रखा होगा, then I will move it to the till it reach the fundus. After that I will remove all the instruments and cut short the thread up to the 2 centimeter from cervix, and explain the whole of the procedure to the patient that it is successfully placed, and she should I will give the card to the patient, and after that I will counsel that she should come for the follow up after the first menstrual cycle or if she experience any complaints. बिल्कुल सही। मैम इसी इस पेशेंट की जो है ना कंटिन्यूएशन थी कि आपका पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट होके वापस आई है, ठीक है, एंड शी डज नॉट वांट टू दिस चाइल्ड ना, तो आप क्या करेंगे फर्दर, आपका क्या होगा? Will you terminate? Will you counsel her for continuation of her pregnancy? We'll explain to her the failure rate related to this. It's a rare thing to happen, but as it has happened, then obviously I will remove the copper T and will counsel her for the continuation of pregnancy. But she wants termination. नहीं, अब वांट वाली बात तो नहीं है ना, अब हो गया तो अब उसको तो नहीं हम टर्मिनेट करेंगे ना। इट्स नॉट एन इंडिकेशन फॉर इसी पे टर्मिनेशन। मैडम वो बहस चल रही थी कि एग्जामिनर कह रही थी कि तुम पेशेंट अगर तुम्हें कह रही है कि मैंने, वो तो फिर दाई के पास जाके करवा लेगी। तुम लोग किस चीज You will counsel her completely. Obviously you will counsel her also the bad effects because of the termination. You will give her the better picture that after the next pregnancy and considering her age, she can go for the other contraceptive method, maybe the permanent contraceptive method also. And failure of any contraceptive does not mean that if she gets pregnant, she'll get it terminated. So termination has got its own harms, and even if she is not willing, then obviously her counseling with a proper counselor and also with the family counseling of the patient and her whole family should be done, and the decision is made afterwards. Frankly, it's a rare thing to happen, but we all come across these things. हो जाते हैं, but once you counsel the patient, वो counsel हो जाते हैं. Legally, we are not allowed to do termination. However,
अगर वही बात है कि इसमें तो फिर वही वाली बात आ जाती है, व्हाट इफ शी गोज टू एन अनक्वालिफाइड पर्सन, then you'll have to identify some organizations who do it medically and in a better way. Then you can refer the patient to a better organization who is doing it in a better way. There are organizations जो करके फिर साथ ही permanent contraception भी करते हैं, but other than that it's not about हम, लेकिन अगर आप उसकी proper counseling कराएं with the proper counselor, family को बिठा के, तो वो हो जाते हैं. एक्चुअली मैम रोल प्लेयर बैठी थी और शी वाज नॉट काउंसल्ड विद एनी ऑफ द गर्ल्स. नहीं, काउंसलिंग के लिए तो फिर आप यही बताते ना कि हार्म्स ऑफ गेटिंग टर्मिनेशन डन, व्हाट आर द हार्म्स, एक्सेसिव ब्लड लॉस, इवन इतना ज्यादा ब्लड लॉस, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस, देन शी में एंड अप इन इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर डीएनसी की कॉम्प्लिकेशंस, और उसके बाद ये कि व्हाट इफ कोई परमानेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाए, शी इज नेवर एबल टू गेट प्रेग्नेंट अगेन. अगर उसने रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया तो प्रोबेबली उसका प्लान है आगे कोई ना कोई प्रेगनेंसी करने का. तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन इफ शी कंसीव्स, इफ शी कंप्लीट्स प्रेगनेंसी. That's the baby. And then फिर फैसला हो कि क्या करना है. और मैम एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर सॉरी, टी के इंटरनेट साथ मुझे है ना बहुत ऑफ जी. कि कॉपर टी के साथ अगर आपका पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो आप रिमूव कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यूएशन कराते हैं, लेकिन एक्चुअली की जी. गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई LNJ IUS के साथ प्रेग्नेंट होती है, जो कि बहुत ही रेयर है, तो आपने उसमें टर्मिनेशन करनी है प्रेगनेंसी की. आज इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. सॉरी, आपकी आवाज ही कट गई. आप श्री की कोई अच्छी बात बता रहे थे. Ma'am, if the patient gets pregnant with LNJ IUS in utero, so then you have to terminate that pregnancy. If a patient gets pregnant with what? Levonorgestrel intrauterine system, LNJ IUS. Myrina. हो गई है तो कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उसके साथ टर्मिनेशन करो? मैम एक्चुअली की जो गाइडलाइन है ना FRSH की, आई कैन शेयर द रेफरेंस. वो मुझे देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस रेफरेंस से कहा है, वरना मुझे अभी तक तो यही बात पता थी कि जस्ट नीड टू रिमूव द डिवाइस एंड देन गो अहेड विद इट. आई डोंट फाइंड अ लॉजिक, मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही टर्मिनेशन की. मैं आपको शेयर करती हूँ. शेयर तो करोगे पर कोई लॉजिक भी तो होगी ना साथ में दीदी कि क्यों करो टर्मिनेशन. सनिया और रीना जल्दी से क्वेश्चन जी कर लें, मैम. फिर अगला स्टेशन करते हैं. मैम जी. मैं ये जो लास्ट वाले स्टेप्स थे ना वही सिर्फ बताती हूँ कि ये जो इंसर्शन ट्यूब है और सॉलिड रोड है, इसको तो पहले हम लोडेड करते हैं ना कि आर्म्स को हम अंदर पैकेट के अंदर करते हैं, तो आप इंसर्शन ट्यूब को सॉलिड रॉड के बाहर तक लेकर आते हैं कि आर्म जो है ना वो मेरे खुल पास ये जाए. भी है. फिर आप उसको फंडस तक लेके जाते हो और फिर इंसर्शन ट्यूब को निकालते हो, उसको और रॉड को नहीं निकालते हो. ऐसे ही है, ये देखो ना, ये है कॉपर्टी. जी मैडम. ठीक है ना, जी ये जी इसकी जी लोडेड मैडम. कॉपर्टी है. आर्म्स लोड हुई हुई है. फॉर जी एग्जाम्पल मैडम. 7 सेंटीमीटर की यूट्रस है, ये आपने फ्लैंज को 7 सेंटीमीटर पे सेट कर दिया. ठीक है, आपने साउंड से मेजर करने के बाद इसको सेट किया. उसके बाद जब आपने इंसर्ट किया 6 सेंटीमीटर तक ले जाके आपने, अच्छा अब वैसे ये भी कॉन्सेप्ट है कि पूरा 7 सेंटीमीटर तक ले जाकर ही खोलो और फिर वापस लेके आओ. बट चलो इसके अंदर आप सनिया जिस तरह से लिया, ये आर्म्स खुल के 6 सेंटीमीटर पे रख के फिर आपने फुल ऊपर तक से हमें ये बताया कि प्लंजर को आप फिक्स रखोगे और शीट को बाहर खींच लोगे, ऐसे ही है ना? ये मैडम बाहर तक लेकर आएंगे ना इस सॉलिड. जी जी, थोड़ा सा कि आर्म खुल जाए और फिर फंडस तक एडवांस करेंगे. शीट को आप वापस तक लेके आओगे और जब आप वापस तक लेके आओगे तो कॉपर्टी अंदर से खुल जाएंगी और जाएगी फिर और इस तरीके से बाहर आ जाएगी और आप 1 to 2 सेंटीमीटर बाहर थ्रेड काट दोगे. जी मैडम, ये जो रॉड जो है ना, ये रॉड है और ये नीचे वाला तो इसका प्लंजर है ना, एक सॉलिड रॉड है और एक इंसर्शन ट्यूब है. तो इंसर्शन ट्यूब को थोड़ा रोटेट करना है, सॉलिड बाहर तक लेकर आके कि खुल जाए, एडवांस करके इसको फिर से इंसर्शन ट्यूब को रोटेट करना है. इसको जी मैडम. प्लंजर को फिक्स रखेंगे, जी जी शीट जी को जी पुल मैडम. जी मैडम.
ठीक जी है ना मैडम ऐसे ये? जी जी ठीक है, गुड। जी रीना जल्दी से क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर मुझे ये पूछना है, आपने जो ट्रोकार का बताया था ना, उसकी जो फर्स्ट मार्क है, उस हाँ जस्ट फर्स्ट मार्क तक ही हम उसमें वो रोड डालें, या सेकंड मार्क तक लेके, मतलब ये सेकंड मार्क जो आपके हैंड के साथ है, ये हाँ, वाली, ये इतना डाल के फिर हम रोड हाँ, डालेंगे ना? जी फिर डाल के सेकंड मार्क तक ले जाके रॉड डालेंगे। अच्छा सही, बस मुझे ये कंफर्म करना था। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैं फिर देखो, ये भी बात मारीना की हुई है, प्लीज एक बात याद रखो, टर्मिनेशन नहीं करनी होती, आप बस इंट्रायूट्राइन सिस्टम को निकाल देते हो, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। विल आई कंफर्म दिस थिंग, आई डोंट एग्री टू द पॉइंट कैसे है। ठीक है, चलो गुड। अच्छा अब अगला कर लेते हैं, क्या करना है? पेरिनियल टीयर्स कर लें, कोई जल्दी से बताए, कौन बताएगा? पहले तो मुझे जल्दी से इसकी टाइप्स बता दो, उसके बाद हम जल्दी से रिपेयर कर लेते हैं। ये मैडम क्लास इसकी टाइप जो बेसिकली है आप सबकी रिवीजन के लिए, क्योंकि ये तो वो मैडम स्टेशंस इसकी है ना जो तकरीबन। मैडम इसकी जो टाइप है एक जेड्स है, जिसमें हमारे पास 13.5 मिलीग्राम जो होता है लेवोनोट्रिस्ट्रेल होता है, और 6 to 10 माइक्रोग्राम पर डे के क्या हिसाब बता से। रहे हैं? हम तो पेरिनियल टीयर्स कर रहे हैं। सॉरी वो मैडम, मैं थ्योरी कह तो रही आप हूँ लोग जैसे कर लोगे मैडम ना, आवाज थ्योरी बीच तो में आप से लोग कर लेना। डिस्कनेक्ट हो रही है, तो इसलिए आज मैं समझी इंटरनेट जैसे का आप प्रॉब्लम हुआ है, कभी आ रहा अच्छा है मैडम कभी जा रहा है। पेरिनियल टीयर का क्या बताऊं? मैडम बताएं आप, पेरिनियल टीयर का क्या बताऊं? टाइप्स बता दो ना, क्लासिफिकेशन जो मैडम है। पेरिनियल टाइप जो है वो हमारे पास सेकंड, एक फर्स्ट डिग्री होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ स्किन की लैशरेशन होती है, जो सेकंड डिग्री होता है उसमें हमारे पास मसल्स आ जाता है, स्किन आ जाता है। जब हमारे पास स्पिंटर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो वो थर्ड डिग्री होता है। जब एक्सटर्नल स्पिंटर की लेस देन 50% होगी तो वो 3A होगा, जब ग्रेटर देन 50% होगी तो 3B होगा, और जब गुड, एक्सटर्नल इंटरनल होगा तो वो मैडम हमारे पास 3C होगा, और जब हमारे पास एनोरेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो मैडम वो 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और बटन होल रेक्टल टीयर क्या होता है? मैडम बटन होल रेक्टल में ये होता है कि आपका जो रेक्टल मिकोसा होता है ना, इसमें स्फिंक्टर इंटैक्ट होता है मैडम, और रेक्टल मिकोसा गुड, जो होता है ना उसमें टियर होता है। ऐसे तो ही है। इस जब जी आप रेक्टम में से फिंगर निकालते हो तो वो वजाइना से निकलती है, लेकिन बाहर से स्फिंक्टर वगैरह आपको ठीक लगता है। जी मैडम। चलो अब रिपेयर का अभी बता दो जल्दी से। तो रिपेयर मैडम कौन सा रिपेयर बताऊं? 3rd डिग्री का फोर्थ ही मैडम बता दो, अच्छा फोर्थ में सब मैडम, कुछ कवर हो जाएगा ना, अच्छा 4 डिग्री टियर में मैडम एग्जाम की तरह। जी madam, I will take the I will counsel my patient that I will first review the notes of my patient, that what were the basic risk factor that is causing this perineal tear. After reviewing the notes of it, I will then counsel my patient about that this is a perineal tear and we need to stitch it. So if the patient is bleeding at the moment, then it needs a good packing. I will involve my senior obstetrician. I will inform it that madam, such incident has happened in my ward, and I will take input from it. And the meanwhile, I will I will examine the tear and its severity. If then I will take the informed consent, and I will proceed to repairing of it under general anesthesia, under short-acting anesthesia, ma'am. So for that, I will take informed consent for my patient, and I will arrange the blood for the cross-matching, and then I will take the patient, and after proper gowning and gloving, and then I will confirm my findings. First will be, madam, rectal mucosa. So I will stitch it with the help of the Vicryl 30, ma'am, and by taking interrupter sutures. And after that, then I will. रेक्टल म्यूकोसा you can do continuous or interrupted. Actually interrupted ठीक है, better ठीक है। G madam, with a 30 Vicryl, ma'am, and then I will identify the splinter. Like first will be the madam इंटरनल एनल, इंटरनल एनाल स्पिंटर ना। इंटरनल एनाल स्पिंटर जो होता है वो बीफी रेड होता है, और जो एक्सटर्नल एनाल स्पिंटर होता है वो ग्लिस्टिंग होता है, या नहीं उल्टा नहीं बता रही, उल्टा, हाँ उल्टा उल्टा बता रही बोला। हूँ। बीफी रेड जो होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल होता है, इंटरनल जो होता है वो ग्लिस्टिंग होता है। सो जो इंटरनल जो स्पिंटर्स है, द रिकमेंडेड इज द मैडम PDS 30 और Vicryl 20, and in case of internal splinter I will repair it by end-to-end anastomosis, preferably madam just like the mattress sutures, without tension लूंगी, और मेरा नॉट जो होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि नॉट माइग्रेशन ना हो, और टेंशन भी इनमें ना हो कि इनमें पोस्ट ऑप पेरिस्कीमिया ना हो।
फिर मैडम मेरे पास एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर आएगा। एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर में मैडम मेरे पास जो फुल थिकनेस होता है, आई विल रिपेयर इट बाय आई विल रिपेयर फुल थिकनेस बाय द ओवरलैप टेक्निक एंड द पार्शियल थिकनेस बाय एंड टू एंड टेक्निक। जो फुल थिकनेस है उसके लिए मैडम यही रिकमेंडेड सूचर है कि या तो PDS 30 यूज कर सकते हो या मैडम माइक्रेल जो होता है वो 20 यूज करूंगी। अच्छा, जो ओवरलैप टेक्निक होती है, जो एंड टू एंड पहले बताती हूँ, उसमें ये होता है कि हमारे पास 3, 6 और 3 और 9 पार्शियल थिकनेस के लिए। जी पार्शियल थिकनेस का ना। तो उसमें ऐसा होता है कि मैडम 3 को 3 से और 9 को 9 को और 12 को 12 को 6 से 6 के दोनों के जो है ना पॉइंट्स को लेकर आऊं और उनको टाई कर दूं। मतलब जो एक साइड का 3 है उसको 3 से मिलाऊं, जो 12 का है उसको 12 से मिलाऊं, जो 9 का है उसको आपस 9 से मिलाऊं और जो 6 का है उसको 6 से मिलाऊं। और जो ओवरलैप टेक्निक होता है उसमें ये होता है कि जो फ्लैप होता है मेरे पास जो सुपीरियर है और जो इंफीरियर फ्लैप है, सुपीरियर का 1.5 सेंटीमीटर का चंक उठाऊंगी और जो नीचे का फ्लैप है उसका मैडम 0.5 सेंटीमीटर उठाऊंगी और ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी इन द जेड टेक्निक मैनर। तो उसको फिर ऊपर की तरफ मैडम उठाए हो जाएगा। इस तरीके से मैडम मेरी 3 सीटर्स होनी चाहिए। फिर पेशेंट को जो है पोस्ट ऑप रिकवरी में शिफ्ट करा के पेशेंट को पहले NPO रखूंगी फॉर तकरीबन 24 आवर्स के लिए। IV फ्लूइड की ड्रिप पेशेंट को स्टार्ट हुई होगी, फिर पेशेंट को जो है वो फ्लूइड की तरफ स्विच ऑफ करूंगी, फिर सेमी सॉलिड फ्लूइड की तरफ लेके जाऊंगी, वहां पे डीबल्किंग एजेंट्स को अवॉइड करूंगी, रेक्टल एग्जामिनेशंस वगैरह ये नहीं होंगी ऐसे पेशेंट्स में। पेशेंट को एंटीबायोटिक का कवर, पेशेंट को एनाल्जेसिया का कवर और पेशेंट को जो है वो स्टूल सॉफ्टनर्स के बारे में बताऊंगी और फिर बात के बारे में बताऊंगी और पेशेंट को फिर फॉलो अप बुलाऊंगी 2 वीक्स पे और फिर उसके 6 वीक्स पे एग्जामिन करूंगी। पेशेंट को बताऊंगी कि ये जो तकरीबन मेरे पास पेशेंट्स होते हैं रिकरेंस हो जाती है 5 to 9% केसेस में, लेकिन 60% पेशेंट्स जो होते हैं वो मेरे पास एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं। मैडम आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अच्छा बता रहे हो। अच्छा 80% मेरा हाल है रिकवरी। अच्छा 60 to 80% मैडम एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं ना, लेकिन फर्स्ट रिपेयर में। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैडम पेशेंट को जब बुलाऊंगी तो उसमें फिर असेस करूंगी। वैसे मैडम ये भी होता है कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास रेफरल, ये तो पेशेंट थी जो कि मेरे पास लेबर रूम में थी ना, उसको मैंने फटाफट स्टिच कर दिया, लेकिन ये है कि खैर ये वाली बातें मैं नहीं बताऊंगी, ये तो मेरा सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर मैडम यही होगा कि पेशेंट को बुलाऊंगी और उसको फिर कहूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल ये हील नहीं होता या तुम्हें वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स भी इसमें हो जाती है तो फिर जो तुम्हारी नेक्स्ट डिलीवरीज होंगी उसमें SPD भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी रिपेयर होता है या उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें हम छोड़ देते हैं तो उसमें एंडो एनाल मैनोमेट्री कराते हैं और उसमें एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर की रिपेयर डिफेक्ट को देखते हैं। अगर वो हमारे पास 3 mm से ज्यादा हो जाता है तो देन यू हैव टू बी डिलीवर बाय सिजेरियन सेक्शन। और मैडम इस पेशेंट्स की मैं क्लिनिकल गवर्नेंस भी करूंगी, इसको ऑडिट भी करूंगी, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करूंगी कि व्हाई दिस हैपेंस एंड व्हाट वाज द थिंग दैट हैपेंस टू इट। मैडम उसको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताऊंगी, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी मैडम बताऊंगी। गुड, आई थिंक बिल्कुल ठीक था। थोड़ी सी चीजें यही कि जब ये सब कुछ हो गया तो आपने टाइम ऑफ रिपेयर देखना है कि कब करना है, इमीडिएट करना है या आपने 12 वीक्स का टाइम उसको देना है टिश्यूज को रिकवरी होने का। ऑब्वियसली अगर उसी वक्त डिलीवरी हुई है फिर तो हम कर देंगे, अगर डिले हो गया तो फिर हम रिकवरी थोड़ा सा उसका करते हैं। उसके बाद रेस्ट वेंट वेरी वेल, इसलिए बिकॉज आप बताया हमें एग्जाम की तरह नहीं रहे थे, आप थोड़ा उर्दू में बताते लेकिन इतना अच्छा बता रहे थे कि आई डिडंट इंटरप्ट यू क्योंकि द होल थिंग वाज गोइंग सो फाइन। जिस तरीके से आपने बताया आई थिंक द होल थिंग वेंट फाइन। थोड़ा सा यही बात कि रिकवरी कब होनी है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, इट्स लाइक अराउंड 60 कितने परसेंट इन 12 मंथ टाइम, 60 to 80% इन 12 मंथ टाइम्स एंड 12 मंथ्स टाइम। और उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी डिलीवरी का ये है कि अगर तो उसके सिम्टम्स बाकी रह जाते हैं तो फिर तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, स्पेशली 3rd डिग्री टीयर में खास तौर पे। अगर वो उसका और जो गाइडलाइन कहती है वो तो कहती है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक कंप्लीटली हुई हुई है, उसके सिम्टम्स भी नहीं है, इवन उसका किसी किस्म का एनल इनकॉन्टिनेंस उसमें फैटल जिसमें फ्लैटस और साथ फीकल इनकॉन्टिनेंस दोनों शामिल होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर तो आप उसको नॉर्मल डिलीवर भी कर सकते हो और उसके अंदर चाहे आप एपिजियोटमी भी ना दो। लेकिन अगर उसके कुछ सिम्टम रह गए, मे बी फ्लैटस इनकॉन्टिनेंस या कुछ भी, तो फिर आप उसको किसी सूरत नॉर्मल नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी विल वर्सन द सिम्टम्स। और इसी तरह अगर वो कहते हैं कि किसी पेशेंट को 6 मंथ्स लगे हैं उसके एंडोएनल स्कैन को ठीक होने में, तो भी आप उसको लेटर ऑन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि उसकी रिकवरी डिलेड थी, इट वाज नॉट एन अर्ली रिकवरी, तो आप उसको फिर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते। जी नसरीन। मैम ये अगर प्राइमरी रिपेयर हुआ हो तो उसमें एंडोएनल अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे 6 महीने बाद? अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो देखो हम लोग तो वैसे नहीं करते पाकिस्तान में, तो वी डोंट डू इट। और अगर इफ शी इज सिम्प्टोमेटिक फिर करेंगे, वैसे करेंगे भी नहीं, गाइडलाइन भी यही कहती है। अगर सेकेंडरी हुआ हो तब करेंगे, ऐसे ही है।
सेकेंडरी में तो देखो ना, जब रिपेयर के ऊपर रिपेयर करनी पड़े उसमें तो वैसे ही रिकवरी मुश्किल है ना, उसमें तो इंसिडेंस ऑफ रिकवरी कम हो जाता है। इसीलिए तो इट शुड बी डन, जैसे अभी हमें इतना अच्छा इन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्री ऑपरेटिवली देखा, फिर एक्सपोजर उसका, इट शुड बी डन बाय सीनियर पर्सन हु इज ऑलरेडी एन एक्सपर्ट ऑफ डूइंग इट, क्योंकि इसमें रिकवरी का चांस ही ज्यादा फर्स्ट रिपेयर में। सेकेंड में तो फिर आपको ज्यादा फॉलोअप्स में रखने की भी जरूरत है ना। ठीक ठीक है जी फातिमा। जी मैम, इसमें नॉट्स का कुछ है कि आपने मसल के नीचे ही बरी करनी है, लाइक मिकोजा में भी जब हमने नॉट की करना जो है तो माइग्रेशन है ना वो हो जाती होती है, उसका भी इंसिडेंस कुछ है तकरीबन आई थिंक 7% और सो। तो उसमें जब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट, उसमें आपको ज्यादा समझ में आता है कि आपने नॉट का क्या मतलब है कि किधर को रखना है। तो यस, नॉट शुड बी, वो कहते हैं कि इनसाइड की मसल की तरफ रखें ताकि उसकी माइग्रेशन ना हो। सब वो फिर आप इसके अगर वर्कशॉप या कोई स्किल डेमो अटेंड कर रहे हो तो यू गेट नो इट मोर। वैसे हमें सनिया ने बड़ा अच्छा वो सारा भी बताया था। जी सनिया। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बल्कि बताना चाह रही हूँ मैडम, ये कि कोई ऐसा अगर आपके पास मॉडल प्लीज पड़ा हो तो उस पे जरा 1-2 स्टिचेस ला के मैडम अगर दिखा दे इस क्लास वीडियो में पता नहीं, मैं तो ये अभी जिडाल रखवाते हुए ये सोच रही थी कि पता नहीं आपको कितना नजर आ रहा है और क्या समझ आ रहा है। में। पता मैम लग रहा था समझ वैसे आ जाता वीडियो है पे। नहीं वो मैम। तो सही है मैडम, वो तो सही हमें समझ आ गई है। बस ये होता है कि वैसे तो आता है, रिपीट किए भी है, लेकिन ये है कि जो आपका वो होता है ना, आपका जो स्टाइल होता है उसी को आप फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा कि आप बता दें चलो मैं हमें कोई देख लेती हूँ, अगर एग्जाम कोई में मॉडल कैसे अरेंज होता है ना जी मैडम। तो उसके ऊपर आपको एक एंड टू एंड और ओवरलैपिंग और नॉट्स का थोड़ा आइडिया हो जाएगा सारा। मैडम ठीक है मैडम। मैडम अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैडम प्राइमरी रिपेयर का मतलब है कि फर्स्ट टाइम रिपेयर, जी सेकेंडरी रिपेयर का मतलब है ट्वाइस रिपेयर सेकंड टाइम। जी, वो फाइन, ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, मैम सो सेकेंडरी आज रिपेयर का हमने मतलब मुश्किल ये मुश्किल नहीं दो है तीन कि कवर कर लिए हैं। 3 जी महीने बाद करेंगे। सेकेंडरी रिपेयर का ये मतलब नहीं है कि इसको 3 महीने बाद करेंगे और प्राइमरी का वही 24 घंटे में, ऐसे नहीं है। नहीं, देखो प्राइमरी रिपेयर का मतलब ये है, देखो प्राइमरी रिपेयर और सेकेंडरी रिपेयर एक्चुअली वर्ड्स हैं नहीं, ये हमने खुद बनाए। उसमें होता है कि फर्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर की रिकवरी, यानी जो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर सर्जरी हो गई उसके बाद रिकवरी कितनी है। प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है। अगर आपने 3 महीने के बाद किया है उसकी रिपेयर तो भी वो फर्स्ट ही रिपेयर है ना, किया तो फर्स्ट टाइम ही है, उन टिश्यूज को हैंडल तो फर्स्ट टाइम ही किया है। जो इस ये पेरिनियल टीयर्स फिस्टुलास, इसके अंदर जो फर्स्ट सर्जरी होती है ना, दैट हैज गॉट द मैक्सिमम सक्सेस। अगर आपकी फर्स्ट सर्जरी में सक्सेस अचीव नहीं हुआ तो सेकंड सर्जरी करनी पड़ती है, ऑब्वियसली ठीक तो करना है। तो सेकंड सर्जरी में सक्सेस ऑब्वियसली कम हो जाती है। सो बेसिकली इट्स द फर्स्ट सर्जिकल अटेम्प्ट एंड सेकंड सर्जिकल अटेम्प्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्जरी तो हम वैसी बात करने में बोल रहे हैं, ये कोई टर्म्स है नहीं इसके ऊपर अप्लाई होने वाली। ठीक है, आयशा ने क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी। मैडम मुझे बताएं कि जो एनल मुकोजा वाली नॉट्स है वो हमने एनल कनाल में रखनी है या मसल के नीचे रखनी है? जो एनल मुकोजा में जो हम नॉट्स रखेंगे वो एनल कनाल में रखनी है? ये कौन बताएगा? ये जिन्होंने भी हमें सारा बताया वो बताएं। सनिया, सनिया ने बताया था अभी सारा। मैडम हाँ जी मैडम, नीचे की तरफ रखनी है ना? वी हैव टू टुवर्ड्स टेक द द कैनाल, यस टुवर्ड्स द कैनाल। क्योंकि मसल से वो माइग्रेशन का चांस ज्यादा हो जाएगा। ओके मैडम। मैडम और कितनी देर तक, अगर हमारे पास एक पेशेंट डायग्नोज होती है 12 आवर्स के बाद कि उसका ये एनल स्फिंक्टर इंजरी है, तो उसको हम कर लेंगे? उसको भी 12 आवर के अंदर अंदर हम उसको प्राइमरी उसकी कर सकते हैं या उसको भी 3 मंथ्स के बाद करेंगे? देखो इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो तो वही होता है 12 आवर्स वाला, तो मैंने 3 मंथ्स के बाद ही किताबें तो यही कहती हैं। और मैडम अगर एक पेशेंट आती है उसको इनकॉन्टिनेंस हुआ फीकल, तो फिर हम 3 मंथ तक वेट करते रहेंगे उसका, वो फीकल इनकॉन्टिनेंस है उसके उसको? अंदर फिर हम सर्जिकल ओपिनियन भी लेते हैं एट टाइम्स, उसके अंदर फिर आपको फीकल उसको करना पड़ता है डाइवर्ट। मेजर डिग्री पेनिनियल टीयर के अंदर अगर आप उसको रेस्ट देना चाहो तो आपको कोलोस्टोमी ऊपर बनानी पड़ती है एंड देन यू डू द रिपेयर आफ्टर 3 मंथ्स और कोलोस्टोमी रिवर्सल।
ओके मैडम, थैंक यू मैडम। एक दफा फिर वो कॉपर IUCD वाला एक दफा बता दीजिएगा, वो मुझे वो नजर नहीं उस टाइम आया था। वो कॉपर टी कैसे का उसको बड़ा करना है? आसान है, उसके अंदर एक ही चीज है हमारे। इसके बाद किसी ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट एम्फसाइज किया है, मुझे याद नहीं वो कौन था, कि उसके अंदर एक ही मैम वो सबसे भी मैं इम्पोर्टेंट थी, चीज। वो भी वो मैं भी थी आज मैडम। सनिया अच्छा रिवाइज करा रही है सबको। वो भी यही बेसिकली पॉइंट था कि उसके अंदर ये एक आपकी शीट होती है और ये प्लंजर होता है, राइट। और ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज द फ्लैंज। तो उसमें आप जब आपने फॉर एग्जांपल साउंड से देखा तो 8 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ आई, ठीक है। तो उसके अंदर जब आपने ये, सॉरी इसके कॉपर्टी का ये डाल दूं जरा इसका बेस। तो जब आपने उसको 8 सेंटीमीटर का मेजर किया तो ये लोड किया हुआ था आपने, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लोडेड, ठीक है। और आपने जब आपने 7 सेंटीमीटर तक अंदर लेके गए हो, उसके बाद आपने इसके थोड़े से प्लंजर को पुश किया, इसकी आर्म्स खुल गई, फिर आप 8 सेंटीमीटर तक ले गए। उसके बाद 8 सेंटीमीटर तक लेके जाने के बाद आपने प्लंजर को फिक्स रखना है और शीट को पुल बैक कर लेना है, और फिर पूरी कॉपर्टी को बाहर निकाल लेना। मैम ओके मैडम, थैंक यू। जी मैम ये अभी जो है ना, ये 12 आवर्स की जो बात की थी ना, ये मैडम मैं वैसे तो ये जो मरियम इब्राहिम है, ये हमारी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है मैडम, लेकिन ये वो वाली, ये मैं सिर्फ इतना डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ये पॉइंट ये उधर जरूर। लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आती है लेस देन 12 आवर्स में, तो आप उसको रिपेयर कर दें और उसको एंटीबायोटिक दे दें। और लेकिन अगर कोई पेशेंट और या किसी पेशेंट का अगर स्फिंक्टर डिफेक्ट है या 4 डिग्री टीयर है, तो उसका मिकोजा जो रेक्टल का है वो स्टिच कर लें, बाकी चीजें आप छोड़ दें। नहीं नहीं, स्फिंक्टर ऐसा मत मैंने बंद कहीं करें। नहीं पढ़ा, वैसे ये नहीं चेक है ना कर लो मैडम? ना, मैंने देखा हाँ है ना। तो ठीक है मैडम, ये ना कहें, ठीक है मैडम। बल्कि इसके अंदर ये जरूर है कि यू डू कोलोस्टमी, यू गेट द कोलोस्टमी डन, ताकि उसकी फीकल कंटामिनेशन ना हो, टिश्यूज हेल्दी हो जब आप 3 मंथ्स के बाद उसको कर रहे हो। हालांकि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर थिंग कि एक पेशेंट की कोलोस्टमी हो रही है और उसका डाइवर्ट हो रहा है पूरा फीकल प्रोसेस, और उसके बाद आप उसके नीचे से रिपेयर 3 मंथ्स के बाद कर रहे हो, फिर कोलोस्टमी रिवर्सल विच मींस ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन। दैट्स अ बिग थिंग टू गो थ्रू, बट इट इज रिकमेंडेड ताकि उसका टिश्यूज हेल्दी हो एट द टाइम ऑफ रिपेयर। ठीक है, चलो आई थिंक आज हमने 2-3 तो टॉपिक्स किए हैं। इट वाज मोर ऑफ अ रिवीजन फॉर यू ऑल। तो नेक्स्ट क्लास भी देख लेते हैं किसी चीज पे, अगर आप लोगों का टॉपिक हो तो डू लेट मी नो।